Hello friends, good morning to all of you. I am Sumit Kumar, welcoming you all in my YouTube channel. Today we are going to learn a very important technique to improve our word power, and the technique is called organic word power. Yes my dear friend, we can learn many words from our organs and we improve our word power. Today's our topic is head. So we can say many words from head. Our body organ what? Head. We can learn many words from head. For example, headache, headdress, headstrong, air-headed, big-headed, block-headed, from head to foot, or we can say more words from head. And yes, dear friend, we can learn many words from organic word power. Organic word power. Organic means what? Related to organ. Related to organs. So we can learn many words from organ, and today's our topic is head. And the meaning of head in Hindi, you can say if it is noun, you can say head means sir. हेड में हेड मतलब ये भी होता है अध्यक्ष, और हेड मतलब ऊंचाई भी होता है. और अगर वर्ब में इसका ले लिया जाए तो इसका मतलब होता है क्या? नेतृत्व करना, या मार्ग दिखाना, या रास्ता दिखाना ही बोल सकते हैं हम, या मुख्य बनाना. And there is also a lot of meanings from head, and that meanings are, and those meanings are what? Headache, headdress, headstrong, air-headed, big-headed, block-headed, and we can also say that from this word fat-headed, hot-headed, touched in head, touched in the head, touched in the head, to make neither head nor tail. एंड इसी तरह से और भी मीनिंग्स है, उसको हम लोग सीखते हैं कि इसके अलावा और भी वर्ड्स आते हैं हेड से रिलेटेड. देख रहे हो आप, इसमें सब में हेड आ रहा है. क्या आ रहा है? हेड आ रहा है. देख रहे हो, हेडेक, हेडड्रेस, हेडस्ट्रॉन्ग, एयर हेडेड, बिग हेडेड, ब्लॉक हेडेड, फैट हेडेड, हॉट हेडेड, टच्ड इन द हेड, टू मेक नेदर हेड नॉर टेल. इस तरह से और भी है जिसमें क्या होता है? हेड आता है, उसको भी सीखते हैं. टू मेक head in one's business. To go off one's head. To eat one's head off. From head to foot. On one's head, over one's head, over head and ears. My dear friends, you can see that there are lots of more on the boards from head. To make head in one business, to make head in one business, to go off one's head, to eat one's head off, from head to foot, on one's head, over head and ears. So we can see that there are lots of words we can learn from head, and now we can explain the meaning of each and every word from the head. Headache. Headache means what? Sir dard. Headache means what? Sir dard. Means pain in head. And the second one is what? Headdress. Headdress. Headdress means what?
मुरेठा, साफा या पगड़ी. And the next one is what? Headstrong. Headstrong means what? जिद्दी या हट्टी भी बोल सकते हैं. एयर हेडेड. एयर हेडेड मीन्स द सेम द मीनिंग ऑफ हेड स्ट्रॉन्ग मीन्स व्हाट? जिद्दी या अरियल. जिद्दी या अरियल. एंड इन इंग्लिश you can also say stubborn or obstinate. And the next one is what? Big headed. Next one is what? Big headed. Big headed means what? अहंकारी या घमंडी. In English you can say that what? Proud or arrogant. Proud or arrogant. Block-headed. Block-headed means what? The block-headed means बेवकूफ या भुसकोल या मूर्ख. You can say it in English: fool, nincompoop, foolish. Fat-headed. Fat-headed means what? Cruel person, or you can say that a very bad man. Fat-headed means what? निर्दयी आदमी. निर्दयी आदमी या निर्दयी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? फैट-हेडेड मीन्स निर्दयी, क्रूएल पर्सन. नेक्स्ट इज व्हाट? हॉट-हेडेड. 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 हॉट-हेडेड मीन्स व्हाट? गरम मिजाज. कहते हैं ना कि वो हॉट-हेडेड, गरम मिजाज का, तुरंत गुस्सा हो जाना. एंग्री मैन. एंग्री मैन. नेक्स्ट इज व्हाट? फैट-हेडेड, हॉट-हेडेड एंड touched in head. Touched in the head. Touched in the head means what? घिसका हुआ. घिसका हुआ या पागल. And the next one is what? Touched in the head. And the next one is to make neither head nor tail. To make neither head nor tail. इसमें भी देखिएगा, इसमें head आ रहा है आपका, तो इसका मतलब क्या होता है? कोई निर्णय नहीं करना पाए, कुछ समझ में नहीं आना. कुछ समझ नहीं आना कह सकते हैं. To make neither head nor tail. And the next one is what? To make head in one's business. To make head in one's business means to grow in one's business means अपने व्यापार में आगे बढ़ना. अपने काम में या अपने व्यापार में, अपने काम में आगे बढ़ना. तो देख रहे हैं यहाँ पर मैंने जो है बताया आपको. फैट हेड मतलब क्या होता है? निर्दयी. हॉट हेड मतलब क्या होता है? गर्म मिजाज का व्यक्ति, गुस्सा वाला व्यक्ति. टच्ड इन द हेड, घिसका हुआ है, पागल, मैड पर्सन. टू मेक नाइदर हेड नॉट टेल मतलब कुछ समझ में नहीं आना. टू अंडरस्टैंड नथिंग. टू मेक हेड इन वंस बिजनेस इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? अपने काम में आगे बढ़ना या अपने व्यापार में आगे बढ़ना या तरक्की करना. तो उसको क्या बोलते हैं? टू मेक हेड इन वंस बिजनेस. अपने काम में तरक्की करना या अपने व्यापार में तरक्की करना या आगे बढ़ना. टू गो ऑफ वंस हेड. टू गो ऑफ वंस हेड मीन्स व्हाट? तो पागल हो जाना या बिल्कुल होश खो देना. तो टू गो ऑफ वंस हेड. यू कैन ऑल्सो से इट टू लॉस्ट वंस हेड. टू लॉस वंस हेड मतलब क्या होता है इसका? तो पागल हो जाना या होश उड़ जाना. या होश उड़ जाना. तो देख रहे हैं इसमें भी क्या आ रहा है? हेड आ रहा है. नेक्स्ट वर्ड सीख सकते हैं हम लोग इससे क्या? टू ईट वंस हैड ऑफ. टू ईट वंस हैड ऑफ मतलब क्या होता है? टू ईट मच मतलब बहुत ज़्यादा खा लेना. बहुत ज़्यादा खा लेना. बहुत ज़्यादा खा लेना है, बहुत ज़्यादा खाना. द नेक्स्ट वन इज
ऑन वंस हेड। ऑन वन साइड मीन्स व्हाट? जिम्मेवारी, जिम्मेवारी, जिम्मेवारी या आसानी से भी होता है इसका मीनिंग, बड़ी आसानी से या आसानी से। तो इसका दो मीनिंग होता है ऑन वन साइड का, जिम्मेवारी भी होता है और आसानी से भी होता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट? ओवर वंस हेड, ओवर वंस हेड। ओवर वंस हेड मीन्स व्हाट? तो ओवर वंस हेड मतलब समझ से बाहर होना, समझ से बाहर या समझ के बाहर, समझ के परे या समझ के बाहर। समझ के बाहर। द नेक्स्ट वन इज व्हाट? ओवर हेड एंड ईयर्स, ओवर हेड एंड ईयर्स। इट मीन्स व्हाट? तो कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो हम लोगों ने देखा आज कि कैसे हम लोग हेड से जो है डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग वर्ड पावर सीखें। तो हम लोग अब क्या सीखेंगे? जितने भी वर्ड्स पढ़े हेड से उनसे सेंटेंस बनाना सीखेंगे, जिससे आपको और क्लियर होगा उस वर्ड्स का मतलब। जैसे फर्स्ट वर्ड क्या था हमारा? हेडेक। क्या था? हेडेक। तो क्या सेंटेंस बना सकते हैं इससे? आई हैव अ माइल्ड हेडेक इन माई हेड, इन माई हेड। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे सिर में हल्का दर्द है, मीठा दर्द है। आपको पिछले वीडियो में मैंने मीठा दर्द का भी मीनिंग बताया था। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं? आई हैव अ माइल्ड हेडेक इन माई हेड, या कह सकते हैं आई हैव अ माइल्ड पेन इन माई हेड। तो समझ सकते हैं आप इसका मतलब कि मेरे सिर में हल्का दर्द है। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? हेड्रेस। हेड्रेस, हेड्रेस मतलब है मुरेठा, साफा या पगड़ी। तो कहते हैं गमछा से कुछ लोग क्या करते हैं? हेड्रेस बांध लेते हैं, पगड़ी जैसा बांध लेते हैं, तो बोलते हैं हेड्रेस। तो मुरेठा, साफा या पगड़ी। तो इसका मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बोल सकते क्या? द पर्सन हु इज वियरिंग, द पर्सन हु इज वियरिंग अ हेड्रेस, wearing a headdress is my uncle's friend। इसका मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति जो क्या पहना हुआ, मतलब यहाँ होता है जो, तो वह व्यक्ति जो क्या पहना हुआ है? हेड-ड्रेस पहना हुआ, मतलब पगड़ी बांधा हुआ है या मुरेठा बांधा हुआ है, वो क्या है? मेरे अंकल का, मेरे चाचा का क्या है? फ्रेंड है। इज माई अंकल्स फ्रेंड, मेरे चाचा का फ्रेंड है, मेरे अंकल का फ्रेंड है। Headstrong, headstrong, headstrong means what? headstrong means बताए थे क्या? stubborn या obstinate, जिद्दी या अड़ियल। तो बोल सकते हैं कि अंश is a headstrong boy। अंश क्या है? अंश जो है एक जिद्दी लड़का है। तो यहाँ हम लोग क्या बोलते थे पहले? अंश इज अ stubborn boy, है ना, मतलब जिद्दी लड़का है। तो उसकी तरह हम ये भी हो सकते हैं, अंश इज अ हेड स्ट्रॉन्ग बॉय। नेक्स्ट वन इज व्हाट? एयर हेडेड, एयर हेडेड। द मीनिंग ऑफ बोथ द वर्ड्स इज सेम, बिग हेडेड। बिग हेडेड मीन्स आई हैव टोल्ड यू दैट, मीन्स दैट अहंकारी व्यक्ति यानी घमंडी व्यक्ति। इट मीन्स एरोगेंट पर्सन और प्राउड पर्सन। So now let's learn from this word. What can we make sentence? Ravana was big-headed. Ravana was big-headed. रावणा क्या था? वो एक अहंकारी व्यक्ति था। रावणा वाज अ रावणा वाज प्राउड, या वी कैन से दैट आल्सो रावणा वाज एरोगेंट। तो उस तरह से हम लोग इंग्लिश में हेड से रिलेटेड बोलना हो तो क्या बोल सकते हैं? रावणा वाज बिग हेडेड। तो यहाँ बिग हेडेड मतलब बड़ा सिर वाला नहीं, यहाँ मतलब हो गया अहंकारी व्यक्ति। तो रावणा वाज बिग हेडेड, रावणा क्या था? अहंकारी था। द नेक्स्ट वन इज ब्लॉक हेडेड।
ब्लॉक हेडेड मीन्स व्हाट? तो मीन्स मूर्ख व्यक्ति, अ स्टूपिड पर्सन, अ फुलिश पर्सन, अ फूल पर्सन, या यू कैन से निनकम्पू पर्सन। तो ब्लॉक हेडेड का मतलब क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति। तो मूर्ख व्यक्ति को बोल सकते हैं सी इज अ ब्लॉक हेडेड गर्ल। वो क्या है? वो जो है एक बेवकूफ लड़की है। सी इज अ ब्लॉक हेडेड गर्ल। टच्ड इन द हेड, टच्ड इन द हेड मतलब घिसका हुआ आदमी या पागल आदमी, यू कैन गेट मेड पर्सन। तो इसको क्या बोल सकते हैं? दैट मैन is touched in the head I don't want to talk with him। मतलब क्या हुआ कि दैट मैन इज टच्ड इन द हेड, वो आदमी घिसका हुआ पागल है। आई डोंट वांट टू टॉक विथ हिम, इसका मतलब ये हुआ कि मैं उससे बात करना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टॉक विथ हिम। तो टच इन द हेड मतलब क्या हो सकता है? घिसका हुआ आदमी या पागल आदमी। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? टू मेक नेदर हेड नो टेल। टू मेक नेदर हेड नो टेल, इसका मतलब ये हुआ कोई बात समझ में नहीं आना, टू अंडरस्टैंड नथिंग या टू मेक डिसीजन नथिंग। तो कह सकते हैं आई कुडंट मेक नाइदर हेड नो टेल ऑफ योर स्टेटमेंट, ऑफ योर स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो हूँ, जो भी तुमने कहा, जो भी तुमने बात कहा, जो तुमने स्टेटमेंट कहा, मैं उसका कुछ समझ नहीं पाया, मुझे कोई बात समझ में नहीं आई तुम्हारी वक्तव्य का या तुम्हारे स्टेटमेंट का। तो क्या बोल सकते हैं? आई कुडंट मेक नेदर हैड नो टेल ऑफ योर स्टेटमेंट। देन डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या सीखा? तो ऑर्गेनिक वर्ड पावर से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना सीखा। और भी वर्ड्स मैंने आपको ऑर्गेनिक वर्ड पावर में दिया है, तो मैंने कुछ वर्ड पावर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है सेंटेंसेस में। अब क्या करना है आपको भी, जो बचे हुए सेंटेंस है उसको बनाना है, उसको सॉल्व करना है, और उसके बाद क्या करना है? कमेंट सेक्शन में लिखना है, और जो भी अच्छा होगा मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।